کے موافق دینے کے لیے اجر میرے پاس ہے۔ آمین۔ آج ہم تھوڑی دیر کے لیے غور کریں اس آیت کے اس حصے پر۔ دیکھ میں جلد آنے والا ہوں۔ بہت دیر سے ہم سن رہے ہیں اس بات کو، یسوع کے منہ سے، بائبل کے حوالوں سے، پیشن گوئیوں سے، مگر ایک بات یسوع نے کہی، کل کی بابت بیٹا بھی نہیں جانتا سوائے باپ کے، مگر ہے کہ ہمیں ہر وقت اور ہر لمحے تیار رہے۔ دیکھ میں جلد آنے والا ہوں۔ بہت سی پیغامات آپ نے سنے ہوں گے، مسیح کی آمد قریب ہے، فلانا کام بھی ہو گیا، فلانی پیشن گوئی پوری ہوگی۔ وہ تو ٹھیک ہے، مسیح کی آمد ہے، ہمارا کیا حال ہے؟ کیا میں تیار ہوں؟ کیا ہم تیار ہیں کہ یسوع کی آمد آئے تو یسوع مجھے قبول کر لے؟ ہر ایک کام کے موافق دینے کے لیے اجر میرے پاس ہے۔ یسوع کہتا ہے کہ میں تو آ رہا ہوں، آپ تیار ہیں؟ سوال تو یہ ہے، ہر ایک کام کے موافق دینے کے لیے اجر میرے پاس ہے۔ زبور 96 اس کی 13 آیت، زبور 96 اس کی 13 آیت، خداوند کے حضور کیونکہ وہ آ رہا ہے، وہ زمین کی عدالت کرنے کو آ رہا ہے۔ کائے کے لیے آ رہا ہے؟ زمین کی عدالت کرنے کے لیے۔ وہ صداقت سے جہان کی اور اپنی سچائی سے قوموں کی عدالت کرے گا۔ ٹھیک ہے، مسیح آ رہا ہے، سوال یہ ہے کہ ہم مسیح کے حضور میں منظور نظر ٹھہریں گے کہ نہیں ٹھہریں گے؟ پیشن گوئی اپنی جگہ ہے، ہلکا سا اشارہ دیکھ لیں گے۔ آپ نے بھی خبریں سنی ہوں گی، اخباروں میں، ٹیلی ویژن میں، واٹس ایپ پہ، کہ فلانی چیز ہی پوری ہوگی، فلانی چیز ہی پوری ہوگی۔ تو کسی لمحے بھی یسوع کی آمد ہو سکتی ہے۔ دیکھ میں جلد آنے والا ہوں۔ ٹھیک ہے، سوال ہے کہ میں تیار ہوں؟ اسی لمحے اگر آئے تو میں تیار ہوں۔ ہر ایک کام کے موافق دینے کے لیے اجر میرے پاس ہے۔ وہ آ رہا ہے، وہ زمین کی عدالت کرنے کے لیے آ رہا ہے۔ کاش خدا میں توفیق عنایت کرے کہ ہم اس بات کو سیکھیں کہ یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ اور خداوند ماننا ہے۔ صرف وہی لوگ خدا کی نظر میں منظور ٹھہریں گے، اور جب ریپچر ہوگی، جب کلیسیا اٹھائی جائے گی، وہ جنہوں نے یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ اور خداوند قبول کیا، صرف وہ یسوع کے ساتھ جائیں گے۔ باقی لوگ جو ہیں وہ ان کے اوپر دنیا کا سردار کون ہے؟ شیطان، ان پر حکومت کرے گا۔ دیکھ میں جلد آنے والا ہوں۔ اور جو اس کے لوگ ہیں جنہوں نے یسوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ اور خداوند قبول کیا، صرف وہی ساتھ ہیں، پیچھے رہتے ہیں۔ آج اس بات کو یاد کر کے جانا ہم نے، دیکھ میں جلد آنے والا ہوں۔ آئے خدا، اگر تو آئے تو کیا میں تیار ہوں؟ متی 24 باب 42-44 آئے تک وہ ہم دیکھتے ہیں متی کی انجیل میں کس طریقے سے وہ متی 24 باب اس کی 42 آئے سے، متی کہ 24 باب 42 آئے سے۔ لیکن یہ جان رکھو کہ گھر کے مالک کو معلوم ہوتا کہ جو رات کا کون سے پہر آتا ہے تو جاگتا رہتا، اپنے گھر میں نقل لگانے نہ دیتا، اس لیے تم بھی تیار رہو، کیونکہ جس گھڑی تم کو
क्योंकि जिस घड़ी तुमको गुमान भी ना होगा इब्न आदम आ जाएगा। जैसे नूह के दिनों में लोग ब्याह शादी कर रहे हैं, खुशियाँ मना रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, मगर क्या हुआ? और वो उनको मालूम नहीं था कि अभी तूफान आएगा। यकदम तूफान आया और सब हमारी खुशियाँ अपनी जगह रहेंगी, ब्याह शादियाँ और बातें अपनी जगह रहेंगी। देख मैं जल्द आने वाला हूँ। सवाल यह है कि मैं तैयार हूँ। एक दफ़ा मैं लाहौर से पिंडी वाली बस में जा रहा था। बस में कुछ बारात के लोग बैठे हुए थे, बड़ी खुशियाँ मना रहे थे। तो जा रहे हैं जी, शादी के लिए जा रहे हैं, और रास्ते में बस उल्ट गई। ठीक है, रास्ते में बस उल्ट गई, उनकी सारी खुशियाँ बीच में रह गई। मगर खुदा के फजल से मैं इस जगह बैठा था दरवाजे के सामने, के पास जैसे उल्टी तो मेरे सामने ऊपर दरवाजा खुल गया, मैं बाहर निकले, दूसरी बस पकड़ी और आगे निकल गया। खुशियाँ आ रही हैं, सब कुछ हो रहा है, जैसे नूह के दिनों में हुआ वैसे ही होगा। देख मैं जल्द आने वाला और हर एक के काम के मुवाफिक देने के लिए अजर मेरे पास है। दो बातें, पहली बात देख मैं जल्द आने वाला हूँ, और दूसरा नुकता हर एक काम के मुवाफिक देने के लिए अजर मेरे पास है। हमारे काम कैसे हैं? क्या इस काबिल हैं कि जब यीशु आए तो यीशु मुझे कबूल कर ले? रोमियो 12 बाब उसकी 11 आयत, रोमियो 12 बाब उसकी 11 आयत, काम में सुस्ती ना करो। हम जो कुछ कर रहे हैं ना, ऐसे करें मेहनत से कि यीशु किसी वक्त भी आ सकता है। वाइज 9 बाब उसकी 10 आयत, वाइज 9 बाब उसकी 10 आयत, जिस काम को तेरा हाथ करने पड़े उसे मकदूर भर कर, पूरी एफिशिएंसी के साथ, पूरे ध्यान से, मेहनत से। आधा काम नहीं, अधूरा काम नहीं। आधा काम ना लोगों को पसंद है, ना काम करने वालों को पसंद, ना माल को पसंद है। पूरा काम, जिस काम को तेरा हाथ करने पाए मेहनत से कर। मुझे याद है कि गर्मियों की शदीद गर्मियों में दोपहर के वक्त पादी साहब थे, वो खुदा को चले गए। पादी खूबदा साहब वो हमारे घर में आए। उनकी आदत थी कि जिस जगह जाते थे, अगर देखते थे कि ये मसीह घर जाकर छोटी दुआ करते थे, गैर मसीह बैठे हों, छोटी दुआ करके आगे चले जाते थे। तो हमारे घर में आए, एक शदीद गर्मी थी, साइकिल पर आए। हमारे वालिद साहब ने कहा, भाई साहब इस गर्मी में आप क्यों आए? भाई साहब ने कहा, क्या पता है कि खुदा को मेरी यही अदा पसंद आ जाए। हर एक काम के मुवाफिक अजर देने के लिए मेरे पास है। हर वक्त हर तरह से दुआ में मिन्नत और इबादत करते रहो। इफ्सियों 9 बाब उसकी 10 आयत, इफ्सियों 9 बाब उसकी 10 आयत, हर वक्त और हर लम्हे। ये नहीं कि दुआ कर तो ठीक हो गया, ठीक है? हर लम्हे, हर सेकंड, हर वक्त और हर लम्हे दुआ और मिन्नत करते रहो। हर एक काम को मुवाफिक देने के लिए अजर मेरे पास है। क्या पता कि हमारी जो हम काम कर रहे हैं आधी नीयत से वो खुदा मंजूर ना करे। लोग भी मंजूर नहीं करते। जो काम करे पूरा करे, मुकम्मल करे, वरना ना करे। जिस काम को तेरा हाथ करने पाए उसे मकबूल भर कर। और तोड़ों की मिसाल भी हमने देखी है। किसी को 5 तोड़े मिले, उसने 5 और कमाए, किसी को 2 मिले थे, उसने और कमाए। अगर हमारे पास गाने का तोड़ा है तो दिल से खुदावंद के लिए रास्ते बजाते हैं। अगर हम साथ बजा रहे हैं तो दिल से बजाएं, आधा काम नहीं। क्योंकि इबादत के हिस्से में
एक और हिस्सा है हमद व स्तैश। ये बहुत ज़रूरी है, इसलिए कि खुदा की हम दिल में भी कर सकते हैं, इबादत हम घर में बैठकर भी कर सकते हैं दिल में, मगर गिरजाघर में आना रफ़ाकत और शराकत का एक हिस्सा है। ये ज़रूरी है, एक दूसरे को मजबूत करते हैं। जब हम गाते बजाते हैं तो इससे खुदा की हजूरी ज़्यादा करीब आती है। बाज़ मज़ाहब ऐसे हैं जहाँ गाना बजाना मना है। क्यों? इसलिए कि जब हम बाजा तबला बजाते हैं तो शैतान दूर हो जाता है बाजे तबले से। एक इबादत का हिस्सा है जब हम गाते बजाते हैं साज़ों के साथ। ज़बूरों की किताब में लिखा हुआ साज़ों के साथ जाता है, खुदा का पसंदीदा है। तो इबादत का एक हिस्सा है गाना बजाना। मगर आज का टॉपिक है हर एक के काम के मुवाफिक देने के लिए अजर पड़ता है। अगर हम गाते बजाते हैं पूरे दिल के साथ, आधे दिल से नहीं, मुंह हमारा गा रहा है, रटा लगा रहे हैं समझ के बगैर, पूरी समझ के साथ, ध्यान के साथ, और ताले अगर साज आवाज़ है तो इनके साथ। और अगर हम कोई काम कर रहे हैं तो इस तरीके से करें कि मंजूर हो। हर वक्त और हर लम्हा दुआ और मिन्नत करते रहो। किसी लम्हे अगर हमने नहीं सोचा खुदा के बारे में तो क्या होगा, उसी लम्हे काम खराब हो जाएगा। हम एक सांस लेते हैं, दूसरा सांस ना है तो नहीं बात चलेगी। तब इसलिए हर वक्त और हर लम्हे दुआ करनी है, मिन्नत करनी है, खुदा के हुजूर में सजदा करना है, खुदा पर ध्यान लगाना है। क्यों? देख मैं जल्द आने वाला हूँ। खुदा मुझे तौफीक बख्श के मैं जो कुछ कर रहा हूँ, अगर तू इसी वक्त आ रहा है तो मुझे मंजूर कर। तमाम पेशन गोइयाँ पूरी हो चुकी हुई हैं, कोई पेशन गोई ऐसी नहीं जो ना पूरी हो। मुकाशवे किताबों में और पुराने अहदनामे में नबूवतों की किताब, बाइबल जो है ये इसका एक हिस्सा नबूवती है। बाइबल को अगर हम खाली पढ़ेंगे तो बात नहीं बनेगी। लफ्ज़ मोहर डालते हैं मगर रूह जिंदा करती है। इस नबूवती कलाम को जब हम खुदा की पाक रूह की हिदायत से पढ़ेंगे तो हमें मालूम है कि कोई पेशन गोई पीछे नहीं रहेगी, सब पूरी होगी। अब है कि खुदा जो है मसीह किसी वक्त भी आ सकता है। और अगर जब हम यहाँ से रुखसत होंगे तो हमें नया बदन मिलेगा और हम आसमान पर उठाए जाएंगे। और अगर हम अपने गुनाह में मरेंगे तो दोज़ख में जाएंगे। हम कैसे पता लगता है हमें कि हम जब मरेंगे तो कहाँ जाएंगे? आपको अंदाज़ा है? किसी को अंदाज़ा है कि जब मरेंगे हम, अक्सर कोई मरता है तो हम बड़ा अफसोस करते हैं, मगर हमें ये नहीं मालूम होता रूह कहाँ गई। एक पाजी साहब की एक बेटा था, उसकी वालदा ने मुझसे पूछा कि मेरा बेटा कहाँ गया मरने के बाद। मैं सोचने लगता, बाइबल तक समुंदर बहुत चीज़ें मिलती हैं। पुराने अहदनामे में जिक्र है आलम अरवा का, नए अहदनामे में पहली बार यीशु ने लफ्ज़ इस्तेमाल किया फिरदौस। आज ही तुम्हारे साथ फिरदौस में। तो उसकी क्या शर्त है? आप मेरी मदद करें, दिल में बोलें या कैसे बोलें, मैं आपकी मदद करूंगा। क्या 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 शर्त है फिरदौस में जाने की? बहुत सादा, लंबी चौड़ी नहीं है, बहुत सादा, छोटी। और शैतान ने हमारे आंखों के ऊपर ऐसा पर्दा डाला है कि हम उस सादा चीज़ को मानते हैं। शैतान कहता रोज़े रखो, फलाना काम करो, फलाना काम करो, एग्ज़ाम पढ़ो, मेहनत करो, शायद खुदा तक पहुँच जाइए ना। जितनी मेहनत कर रहे हैं, जितने रोज़े रख रहे हैं, नमाज़ें पढ़ रहे हैं, जितने मर्जी मजहबी हैं, ये हमें फिरदौस में जाने के लिए कोई गारंटी नहीं देता।
फिरदौस में जाने के लिए एक बहुत सादा गलती है, सादा। सुना होगा आपने। हाँ, एक बात बहन ने जिक्र किया, यीशु मसीह को अपना शख्सी नजात देना और खुदा कबूल करना बहुत लंबा काम है। वो बर्रा के खून और अपनी गवाही के कलाम के बायस उस पर गालिब आए। सादा एलानिया इकरार करना है कि यीशु मसीह आज से तू मेरा शख्सी निजात देता और खुदा है, बस। और लंबा काम है और ये गारंटी है कि आप मरने के बाद फिरदौस में जाएंगे। और अगर अपनी ज़िंदगी में इस बात का एलानिया इकरार नहीं किया, एलानिया कि यीशु मसीह मेरा निजात देता खुदावंद है, तो फिर कोई गारंटी नहीं है। जितनी मर्जी बातें हों, जितनी मर्जी मेहनत हो, सादा। मगर इसको नहीं हम करते हैं। क्यों नहीं करते? शैतान का बहुत बड़ा हरबा है, लंबे चौड़े बात हैं, सब कुछ है, ठीक है, बात अपनी जगह है, बातें अपनी जगह है, इल्म अपनी जगह है, मगर छोटा सा नुक्ता जो है उसको हम भूल जाते हैं कि एलानिया इकरार करना है कि यीशु मसीह मेरा निजात देता खुदा है। अपने आप को 2 तिमुथियुस 2:15, 2 तिमुथियुस 2 उसकी 15 आयत, 2 तिमुथियुस 2 और उसकी 15 आयत में लिखा हुआ है। 2 तिमुथियुस 2 उसकी 15 आयत में मकबूल तुम 2 तिमुथियुस उसका 2 और उसकी 15 आयत, अपने आप को खुदा के सामने मकबूल और ऐसे काम करने वाले की तरह पेश करने की कोशिश कर जिसको शर्मिंदा ना होना पड़े। खुदा के काम इस तरीके से करें कि हमें शर्मिंदगी ना हो। 1 पतरस 5:6 आयत, वो तुम्हें वक्त पर सर बुलंद करेगा। टाइम के ऊपर खुदा सर बुलंद करेगा। यशायाह 64:6 आयत, हमारी नेकियां नापाक गंदे लिबास की मानी जाएंगे। जितनी मर्जी नेकियां कर लें, इबादतें कर लें, रोजे रख लें, मैं दोबारा दोहरा रहा हूँ, असल चीज याद रखें, यीशु मसीह को शख्सी निजात खुदावंद कबूल करना एलानिया, फिर गारंटी है कि मैंने फिरदौस में जाना। यकूब 2:26 आयत, अमाल बगैर ईमान के होता है, ईमान के साथ। मगर जो काम खुदावंद में हो वो बायस बरकत होता है। मत्ती 6 उसकी 33 आयत, पहले आसमान की बादशाही की तलाश करो तो ये सब चीजें तुम्हें मिल जाएगी। मैं जल्द आने वाला हूँ। इंतजार तो करते रहते हैं लोग, पता नहीं किसका इंतजार करते हैं। सवाल है कि मैं जो इंतजार कर रहा हूँ ठीक कर रहा हूँ, क्या मैं तैयार हूँ हर एक काम के मुवाफिक देने के लिए जब मेरे पास है। काश खुदा में तौफीक इनायत करे कि आज इस बात को सीख के जाएं, देख मैं जल्द आने वाला हूँ। और उसके लिए लंबा चौड़ा काम नहीं है, सादा। उसके साथ और भी है, नेकी करें। जब हम नई ज़िंदगी हासिल कर लेते हैं तो नेकी का फल हमें लगते हैं। नेकी के फल आज का मुँह तो नहीं है, वो लगते हैं और नेकियां करते हैं, बहुत सी खिदमतें करते हैं। बगैर निजात के नेकियां बेकार है। मेरी तमाम नेकियां नापाक गंदे लिबास के बाद। हम निजात हासिल करें, उस यीशु मसीह को शख्सी निजात देता खुदावंद कबूल करें, फिर क्या होगा? पहले आसमान की बादशाही की तलाश करें और ये सब चीज़ें तुम्हें मिल जाएंगी। खुदा हम सब बरकत दे और तौफीक इनायत करे कि याद रखें मैं जल्द आने वाला हूँ। क्या मैं तैयार हूँ? खुदा हम सब बरकत दे। आमीन।